ओटीटी के इंजीनियर्स घबरा जाते हैं कि आज ये वॉचिंग हम लोड ले पाएंगे कि नहीं। वॉचिंग 3x हो जाती है, पूरा स्टेडियम हिल जाता है। ये पहली बार हो रहा है कि आपके पहले जो बैटिंग करने आता है उनके आउट होने की लोग दुआ कर रहे हैं। स्किप करके मैं दूसरे की न्यूज में चले जाऊंगा। इसमें से मैंने ये पिकअप किया है कि माही भाई रील्स दिखते हैं। विंटेज इज आल्सो 7 letters, just say thala for a reason. No, it's not trolling. I think thala for a reason is for respect. Auction is 7 letters. Thala for a reason. All right, guys, should we open it up to the audience? मैं FNO रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, हाँ। I'm just saying. सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। भाई मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। when you were retiring yourself, right? जब आप रिटायर हो रहे थे उस टाइम पे you must have got mixed feelings as per my idea कि यार एक है कि हम इस गेम के किंग हैं, अभी और खेलना है, अभी थोड़ी ये फीलिंग है। एक साइड होगा यार आई वुड मिस दिस गेम मच, एक साइड होगा नहीं अभी मुझे नहीं खेलना है, वुड बी डन। हाउ वुड यू कम आउट ऑफ दोज मिक्स्ड फीलिंग्स एंड अभी इतने टाइम बाद लाइक हाउ डू यू फील आफ्टर दैट? You know, it is always very difficult to take a decision like that because whatever I have got or cricketers we get in our life, it is predominantly because of cricket. That's amongst the only things, you know, that we know how it needs to be done or what needs to be done. So it's always difficult, but if you pick the right reasons why you need to do it, in the sense why you need to leave it, it becomes quite easy to take a big decision like that. So it wasn't very difficult for me. So in my mind, I'd actually retired after the 2019 World Cup, you know, because after that, the next World Cup was too far away. If I'm not wrong, they had just delayed the T20 World Cup by a year. So next year was the T20 World Cup. So I was like, you know, there's no rush of announcing a retirement. But in my mind and in my actions, I was done. So effectively, if you ask me, when did I retire? I retired in the 2019, you know, World Cup semi-finals. You know, for me, that was the end of it. And then later was a decision that you finally took. वो तो announcement हुआ ना, decision तो पहले हो गया था. It was more an announcement for everyone, you know, that finally the closure has happened, you know. वो वीडियो I'm not एडिट होने में भी टाइम लग गया था। रेंडर हो रहा था। लंबा वीडियो था वो। हाँ, थोड़ा इंटरनेट स्लो था. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो That was also Kishore Kumar song. मैं पल दो पल का शायर। मुकेश. माही भाई अभी तो सब ने बोल दिया है कि आपको कैप्टन कूल या दुनिया भर के लोग बोलते ही रहते, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मैच में जीतने के लिए स्लेजिंग ज़रूरी है? नहीं, मैच जीतने के लिए स्लेजिंग ज़रूरी नहीं है. स्किल सेट होना ज़रूरी है. जो आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्लेजिंग, बट येस, फ्रेंडली बैंटर, थोड़ा पैर खींचना, थोड़ा कुछ बोलना, I am fine with it because it just adds a bit of spice, you know, in the cricket that is happening. But sledging is not the most important thing. Skill set होना ज़रूरी है because also we are thick-skinned in the sense, you know, मोटी चमड़ी के होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई कुछ आके बोल देगा तो, you know, we'll change our plans. And almost 90-95% of the cricketers are like that. But still, अगर आप sledging करके, if you are able to, you know, get hold of somebody's nerves, they may do something silly, but more often than not, you know, you won't. But there are certain cricketers जो कि गुस्सा हो जाते थे तो they were the targets. More often than not, they will be the people who will be targeted. You know, थोड़ा कमेंट करके लोग जाते रहेंगे. लेकिन दिनेश कनेरिया को सर आपने कंटिन्यू 2 छक्के तो लगाए थे. तो स्लेजिंग का पार्ट नहीं है वो, क्रिकेट था. छक्के मारना स्लेजिंग में नहीं आता है. थैंक यू सर, लव यू. Hi Dhoni, this is Alicia Fernandez from Prime TV. And I would like to, first of all, inform you that we have waited last time to see you play in Goa, but due to some reasons, previously Goa match got cancelled of yours. So how is it being here in Goa, and tell us about your relationship with Goa? मुझे तो लगा रिफंड मांगने वाली है मैम कि वो कैंसिल कर दिया सर आज। नहीं, एक ओवर यहीं खेल के दिखाओ. नहीं, बट गोवा में इंटरेस्टिंगली काफ़ी बार हमारे मैचेस वॉश आउट हुए हैं. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे कुछ समय पहले. इट वॉज अ कंप्लीट वॉश आउट इन द सेंस कुछ हुआ ही नहीं. यू नो, आई डोंट इवन रिमेंबर विच साइड वी वर स्टेइंग. तो हमने ना वो एक जिप्सी हायर करके, माई वाइफ वॉज ऑल्सो हियर, शिट कि हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे. सो वी वेंट टू जस्ट गो अबाउट. उस जिप्सी में ना हॉर्न नहीं बजता था और ब्रेक नहीं लगता था. इन द सेंस हॉर्न काम नहीं कर रहा था और ब्रेक बहुत कम था. एंड माई वाइफ इज़ लाइक तेज़ चलाओ. मैं किधर तेज़ चलाऊँ? एंड द बेस्ट इज वी वेंट ऑन द अदर साइड एंड शाम को ना इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट्स एन ओपन जिप्सी. वाह. So then somehow we got
वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, यू नो, जिससे दोस्ती होने वाली, भाई ये जिप्सी तू पकड़, तेरा गाड़ी हमें दे, हमें वापस जाना है. Break तो But yeah, चाहिए. you know, Goa it's different. So my wife is a big fan of, you know, beach. She loves beach, water. She loves Goa. She's like a brand ambassador for Goa. वो कहीं भी अगर गोवा का टॉपिक आ जाए, she can speak for half an hour. So Goa is one thing. Second is hostels. Anybody who has been in a boarding school, college, anywhere, she thinks that they are batchmates. So she loves Goa. I get that Goan attitude when I am here, very laid back. So I came here 3 days back. पहले 2 दिन ना मैं रूम से भी बाहर नहीं निकला था. So imagine I'm right next to the pool. The beach is like 50-60 yards, and I was in my room. I didn't even get out of the room. So that's me, you know. I कौन सा hardly रूम get नंबर है out. सर? रूम नंबर कौन सा है? I just forgot, you know, because they take me from a buggy. So अच्छा, room ठीक. number याद रखने की जरूरत नहीं. ये हमारे जैसे लोगों को याद रखना पड़ता है. Good evening, sir. Hello. So back in the year 2009-10, आप एक बार, I am from वाराणसी, आप एक बार वाराणसी आए थे विद आरपी सिंह. एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी किसी से, तो आप एक बार वाराणसी कनेक्शन के बारे में आप बताएंगे सर? सर ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई थी. वो न्यूज में हेडलाइन थी, धोनी आए और चले भी गए, पता और वो नहीं चला. सीक्रेट थी तो अब नहीं रही अब सीक्रेट. हम बताते हैं आपको सीक्रेट क्या था. न्यूज हेडलाइन आई थी, धोनी आए और चले गए, तो और क्या करना था वरना. धोनी के आए और चले गए और पता भी नहीं चला. So it was more of a road trip. हम लोग दिल्ली से रांची आ रहे थे. So वो बड़ी मैंने एक हमर ली थी, you know, H2. So we were driving it. So बनारस हम घुसे थे नाश्ता करने के लिए. So we were going non-stop. So we just stopped there for half an hour, 45 minutes. नाश्ता करके then we went ahead. So that was the whole thing. And I was so scared. क्योंकि एक तो ये गाड़ी बहुत चौड़ी है. मैंने अपने फ्रेंड को दे दी, बोला मेरे से नहीं चलेगी भाई. So when you're sitting, ऐसा लगता है ना रिक्शा तो मेरे नीचे आने वाली है. I'm telling you, I was so scared. I was like, I cannot drive over here. मैं किसी ना किसी को धक्का मार ही दूंगा. So my friend actually drove. So he took it inside. We had our food and everything. And while it's coming back, the moment we hit the highway, I was like, I'm comfortable driving now. तो यही थी सीक्रेट मीटिंग, नाश्ता. अभी तो शायद ट्रैफिक कम हो गया ना. ये हाँ है ना है. मलइयो थी सीक्रेट मीटिंग उनकी वहाँ पे. Lots of Varanasi also has a lot of hostels. अच्छा So किस टाइप के हॉस्टल की बात कर रहे हो आप? Since you वो अलग mentioned, हॉस्टल्स बता रहे नहीं, थे. एक वो ओल्ड एज वाला हॉस्टल भी है. नहीं वो तो ठीक है, but a lot of new hostels are there. जैसे since your wife is a fond of that, so maybe you can try visiting again. नहीं, डेफिनेटली आई वुड लव टू गो यार. मैं गया नहीं हूँ पिछले, आई डोंट थिंक लास्ट 10 साल में मैं गया हूँ. यू नो नाउ सो ब्यूटिफिकेशन वगैरह हो गया है. यू नो एवरीथिंग इज मैसिव ओवर देयर. क्रिकेट स्टेडियम भी बनने वाला है, रोड्स चौड़े हो गए हैं. सो देयर इज रीजन फॉर मी टू गो ओवर देयर, बट लेट्स सी, जब बुलावा आएगा जाएंगे. बहुत जल्द आएगा. थैंक यू सर. वो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई जूसी स्टोरी. हाँ. उसे मिला पोहा. हेलो माई भाई, गुड इवनिंग. माई भाई आज आप देखिए, आज के डेट भी 2+5 7 है, थला फॉर अ रीज़न. और सर आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखिए जुलाई 7. आप जब पैदा हुए 7. आपको कैसे पता मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है असली है? सर वो गूगल पे तो यही दिख रहा है. इवन डेट आप देखिए, ईयर भी 81 है. 8 - 1 7. तो सर 7 से आपका गहरा नाता, और हम लोग बहुत इमोशनल है आपका जर्सी नंबर 7 को लेके. तो सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि डू यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी? नहीं सर, मैं आई वोंट से आई डोंट बिलीव, बट आई डोंट गेट इनटू इट. Right. तो बीच में ऐसे ही फ्लाइट में काफ़ी टाइम पहले एक सज्जन मिले थे. उन्होंने बोला अगर आप अपना जर्सी नंबर 7 से बदल के ये कर लोगे ना, आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बोला सर ये बताओ, आज 7 से मैं जो बिलेट से 7 से मैं 11 करता हूँ. हु इज स्टॉपिंग मी नाउ फ्रॉम 11 to 13, 13 to 20, 20 to 25? आप हर चीज़ लक के ऊपर नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू बिलीव इन हार्ड वर्क, यू हैव टू बिलीव इन डेस्टिनी. सो आई वाज लाइक, मैं बिलीव करता हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ नंबर 7. यू नो, सो आई विल स्टिक टू नंबर 7. मैं इस भंवर में नहीं घुसना चाहता हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाए. एज यू सी, क्रिकेट इज़ अ वेरी सुपरस्टिशियस गेम. यू नो, सो मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स दे हैव सुपरस्टिशन. मेरे से मत पूछना, मेरा क्रिकेट खत्म हो गया है. सो आई एम नॉट टेलिंग यू माई सुपरस्टिशंस, बट दैट्स हाउ इट इज. सो आई नेवर गॉट इन टू इट फॉर अ सिंपल रीज़न कि आई वुड रैदर थिंक अबाउट वॉट इज़ रॉन्ग इन माई टेक्निक, where I need to put in the hard work, rather than सोने से पहले ना यार 7 की जगह ना 21 कर लेता हूँ. कुछ तो फायदा होगा उससे. राइट. मैं तो ये सोच रहा हूँ, वो कौन आदमी जो आपको कह रहा है कि ये कर लो और सक्सेसफुल हो जाओगे. आपको कहना था इधर देख 5 IPL ट्रॉफी वहाँ है, ICC वहाँ है, और क्या चाहता है तू मुझसे?